Hello friends, welcome once again. Now through this video I want to give you information that on 9th August 2020, that is Sunday at 5 p.m. we will have a workshop on the self-management leadership, one of the topics in that. The details I'll give it at the end of this video, and it's a free workshop, so I'll give you the details at the end. Now in the YLC syllabus which I've shared in the Telegram channel, in the part 2, in the serial 16 it is social behavior, in the serial 17 it is empathy, both concerning your interpersonal dimension of existence, that is your emotional dimension. Now those of you don't have this copy, I'll request you to kindly go back to the Telegram channel, AFOCB Telegram channel. The link is given in the description box. I can collect it from there. So we'll talk about something about behavior and all those things today, and how does parenting affect. Now before that I'll give you a TAD picture. I want you to observe the picture, and for 30 seconds you can pause this video and write your response to this and put it in the comment box. So I will continue the video, but you can pause it and write it so that the time is not wasted. So observe the picture for 30 seconds. So this is the picture. So observe this picture for 30 seconds and respond in 4 minutes. What led to the situation, what is currently happening, and what is the final outcome. So you can pause it and write your response and post it here. So this test आपको पता है is part of the psychological test, and आप सोचते कैसे हो, how do you think. So whatever you think you express in the form of a written document, and the psychological dossier is studied to understand how do you think inside, and we will see that. Now if you look at this picture, you can observe this picture at 4 levels: the physical level, the intellectual level, the emotional level, and the value dimension. Now I'll not talk about this picture or the story as such. I'll talk once you give me the response, and then once the psychologist reads your response, and then he interprets it and tries to correlate with the 15 officer like qualities. And यहाँ पे dominantly you can see the emotional dimension is involved for some reasons. You can tell me why this picture has got an emotionally heavy dimension. And this also involves certain decision making. This also involves certain interplay of value system and all those things. And there's a physical behavioral manifestation. And we know your behavior is a function of your personality interacting with the given environment. Now all these things has to happen within you, and it is a non-interactive and non-intervention test. So it is your static pattern of personality. मतलब इस picture को अंदर लेके पूरा processing आपने करना है, and you have to create your Gangotri and then you have to write it. So I'll request you to do that. Now what needs to be understood is, whatever I keep saying कि SSB is a personality based selection and SSB is a subset of life. So we have to understand that when you respond to this, you have to actually understand what's happening in this picture, because everything that you write is a projection of what's happening within you. So when you are able to manage the world within you, you are able to manage the world outside you. So there's a response on the external world is a response of what's happening within you. And what's happening within you will have a basis on the way you have grown over the stages of various life, including your parenting. So वहाँ पे आ जाता है various factors that are affecting your personality development. I've told you कि there are multiple factors, and your physical maturity, intellectual maturity, emotional maturity, and your value maturity all will be affected by multiple factors, and one of them is the parenting style. कि आपके माता पिता का parenting style क्या था. इफ़ योर पेरेंटिंग स्टाइल, उनके पेरेंटिंग स्टाइल बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है, वो आपस में ही बहुत झगड़ा करते रहते हैं, या उनके बीच में बहुत ही हार्मनी है, एवरीथिंग हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन दैट. एंड आई टोल्ड यू इन वन ऑफ द वीडियोज देयर आर 4 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग. माँ बाप अपने बच्चे को किस तरह से, तो पेरेंटिंग स्टाइल एक बात है, और आपस में पेरेंट्स का रिलेशनशिप किस प्रकार का है. तो मैं थोड़ी देर के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जरा अपने माँ बाप को देखो कि उनका रिलेशनशिप में कितना हार्मनी है. क्या वो बहुत हार्मोनाइज्ड है, मतलब जैसे पानी और मछली का रिश्ता है, वेरी कंपैटिबल, या बड़ा ही कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप है पानी और मछली और मछुआरे का. सो मछली और मछुआरे का मतलब बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है. एंड सेकंड इज उनका स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग क्या है. तो इसके बारे में हम डिटेल में तो बात करेंगे, बट आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व इट. और आपको पता है इंटरव्यू में भी वो पूछते हैं फैमिली के ऊपर CIQ है, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, हाउ डू यू
approach them, whom do you approach when you have a problem and all those stuff. We'll see that. So इसको समझाने के लिए कि मतलब पेरेंटिंग स्टाइल का इन्फ्लुएंस क्या है, आई विल गिव एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, ये 2 लिविंग रूम है, आइडेंटिकल लिविंग रूम है, घर का कमरा है बढ़िया सा. ना सपोज एक में मैं हीटर लगा देता हूँ और एक में एसी लगा देता हूँ, दोनों को ऑन कर देता हूँ. नाउ व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? बड़ा सिंपल है. जिस रूम में हीटर लगा है, द एंटायर रूम एंड एवरीबडी लिविंग इन द रूम विल एक्सपीरियंस हीट. अगर वो ज़्यादा हो जाए तो सबको अनकंफर्टेबल कर देगा. इन द सेम वे, इफ द AC इज देयर, द एवरीबडी इन द हाउस विल एक्सपीरियंस द कूलनेस ऑफ द AC. सो the environment in the house has an influence on the people who stay there. In the same way, आपके माता पिता के रिलेशनशिप में AC लगा हो तो वो ठंडा बिहेव करेंगे, और अगर उनके दिमाग में ही अगर हीटर लगा हो तो गर्मी से गुस्सा होते रहेंगे, मार पिटाई करते रहेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, दारू पियेंगे, मार पिटाई करेंगे, एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे. कहने का मतलब है, हमारे भीतर की दुनिया का जो वातावरण है वो हमारे बाहर के पर्यावरण को प्रदूषित कर सकता है या अच्छा भी कर सकता है, और उसके इन्फ्लुएंस में व्हेन द चिल्ड्रन ग्रो दे ऑल्सो गेट अफेक्टेड. सो बड़ा सिंपल है, द क्वालिटी ऑफ आवर इंटरनल वर्ल्ड, आवर के मतलब यहाँ पे पेरेंट्स का, द क्वालिटी ऑफ देयर रिलेशनशिप एंड द वर्ल्ड विद इन देम, it has a great influence on the way they conduct themselves in the house and outside the house, including the parenting. So parents relationship and उनका पेरेंटिंग स्टाइल. नाउ व्हाट इज पेरेंटिंग स्टाइल, विल कवर इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड. आप ऑलरेडी एक्चुअली एक वीडियो में कवर किया हुआ है. तो मैं ये देखना चाहूँगा कि आपको कितना पता है कि आपके माता पिता का रिलेशनशिप, आपका उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड उनका पेरेंटिंग स्टाइल का आपके ऊपर कितना फ़र्क पड़ा हुआ है. इनफैक्ट आपके नंबर ऑफ भाई बहन जो है वो भी इन्फ्लुएंस करता है. ऑर्डर ऑफ योर बर्थ, इफ़ यूर नंबर 1, इफ़ यूर नंबर लास्ट, इफ़ यूर बीच के, एवरीथिंग अफेक्ट्स योर पर्सनालिटी, है ना. पेरेंट्स का इनकम, उनका एजुकेशन, उनका प्रोफेशन, द कल्चर इन विच यू लिव, द काइंड ऑफ स्कूल, सो मेनी पैरामीटर्स आते हैं. हम उसके बारे में अभी फ़िलहाल बात नहीं करेंगे. विल जस्ट टॉक अबाउट पेरेंट्स एंड दे पेरेंटिंग स्टाइल. आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि एक छोटा बच्चा जब होता है, जब मैं भी छोटा था, आप भी छोटे थे, वी लर्न बाई इमिटेटिंग. मतलब जो भी माता पिता करते हैं हम वो देखते हैं, कॉपी करते हैं. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गिव अ वेरी गुड मॉडल टू आवर पेरेंट्स और टू आवर चिल्ड्रन. सो जिस घर में माता पिता लड़ते रहते हैं, है ना, जैसे ये पिक्चर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, आपने स्टोरी भी लिखा होगा, तो जिस घर का इन्वायरमेंट इतना करप्टेड होगा, नेचुरली द चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिव मतलब व्हाट दे एक्सपीरियंस. सो एक छोटा सा स्टेटमेंट बोलता हूँ, इफ़ ए चाइल्ड लिव्स विथ क्रिटिसिज्म इट लर्न्स टू कंडम, है ना. इफ़ ए चाइल्ड लिव्स विथ हॉस्टिलिटी इट लर्न्स टू फाइट, हमेशा झगड़ा ही करता रहेगा क्योंकि घर में हॉस्टिलिटी है. इफ़ ए चाइल्ड लिव्स विथ रिडिक्यूल इट लर्न्स टू बी शाई, वो कभी खुलेगा ही नहीं क्योंकि उसको हर चीज़ में माँ बाप उसको टोकते रहते हैं, दबाते रहते हैं, है ना. इफ़ ए चाइल्ड लिव्स विथ शेम इट लर्न्स टू फील गिल्टी, अगर माँ बाप हर चीज़ में उसको बोलेंगे कि शेम नहीं आता, तो शर्म नहीं आता, वो नहीं आता, तो उसे हीन भावना में चला जाएगा. सिमिलरली अगर पेरेंटिंग का स्टाइल डिफरेंट है, बड़ा हार्मोनियस है और बहुत ही मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चे को पढ़ाते हैं, दैट ऑल्सो हैज़ एन इन्फ्लुएंस. फॉर एग्जांपल, इफ़ ए चाइल्ड विथ टॉलरेंस इट लर्न्स टू बी पेशेंट, तो माता पिता के अंदर अगर टॉलरेंस है, टॉलरेंस का मतलब सहन शक्ति है, तो बच्चे के अंदर भी वो सहन शक्ति आ जाता है. इफ़ ए चाइल्ड लिव्स विथ एनकरेजमेंट इट लर्न्स कॉन्फिडेंस. फेलियर होने में प्रॉब्लम नहीं है, बट माँ बाप फेल होने के टाइम में उस बच्चे को कैसे इनकरेज करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. बट अनफॉर्चुनेटली टुडे पेरेंट्स कीप कंपेयरिंग, दे कीप प्रेशराइजिंग द चाइल्ड कि 98% लाओ, दूसरे बच्चों से कंपेयर करना. सो ऑल दोज थिंग्स जो है वो हमारे आत्मविश्वास को तोड़ देता है, एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स आवर एबिलिटी टू टेक फेलियर्स, बिकॉज माँ बाप नाराज हो जाते हैं फेल होने से. इसका मतलब क्या, बचपन में फेल होना नहीं सिखाया तो नेचुरली बड़ा होकर मैं कहाँ से फेल होऊंगा, और पहले बार जब फेल होऊंगा आई वोंट बी एबल टू टेक दैट प्रेशर एंड आई विल ब्रेक डाउन. एंड इट हैपेंस इन एसएसबी प्रिपरेशन. आप लोगों ने देखा है कि थोड़ा सा प्रेशर आते हैं आप लोग चटक जाते हो. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट? सो देयर इज इट्स अ पेरेंटिंग फ्लॉ ऑल्सो कि द पेरेंट्स मच एनकरेज द चिल्ड्रन टू बोथ सक्सेस में भी स्टेबल रहना, फेलियर में भी. अदरवाइज दिस इज एन एसएसबी एक्सपेक्टेशन कि ना आप सक्सेस में हाई होना है ना फेलियर में लो होना. बट हाउ विल यू हैपन? लाइवलीनेस, योर एबिलिटी टू बाउंस बैक when you meet stress, setbacks and obstacles. And next is, if a child is praised it learns to appreciate. अगर child को हर छोटे छोटे अच्छे काम के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाए तो वो बड़ा encourage हो जाता है और वो भी appreciation करना सीख जाता है. So it is a
learning phase for the child. If child lives with fairness, it learns justice. तो घर में अगर माँ बाप चाइल्ड के साथ फेयर है तो उसे भी उसका भी लॉजिक सिस्टम सही एंड गलत का डेवलप होना शुरू हो जाता है. तो ये जो हम चीज़ें आज बोल रहे हैं, डिटर्मिनेशन, करेज, रीजनिंग एबिलिटी, ये सब कोई बड़ा होके 20-22 साल की बात नहीं. ये पेरेंटिंग से शुरू होता है. मात पिता गुरु देवम. बट अनफॉर्चुनेटली आज हमारे पेरेंट्स को पता नहीं है. स्कूल में जाते हैं तो वो भी एक मार्क करके 3 इडियट टाइप करा देते हैं. एंड समाज में भी वही चल रहा है आजकल. हमारा पूरा रट्टा वाले होने के कारण क्या होगा, देयर इज़ नो बैलेंस. तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, एवेल्युएशन स्किल, ये सब डेवलप ही नहीं हो रहा, छूट रहा है. और हम कहीं ना कहीं वो परसेंटेज वाले सिस्टम में फंस गए हैं एजुकेशन सिस्टम के कारण, विच इज़ अनफॉर्चुनेट. सो ऑल दीज सिस्टम्स डोंट वर्क. तो आई ऑलवेज से बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस. तो हमारा वो फ्रीडम ऑफ चॉइस में एक सेंस ऑफ अवेयरनेस नहीं है. सो वी कीप मेकिंग डिसीजन, गलतियाँ होता है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंस आते हैं तो हम ब्लेम करते हैं. ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ द इनर प्रोसेसेस. एंड नाउ व्हेन यू आर गोइंग फॉर एसएसबी, इट इज़ प्योरली ए पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन. और उसके कोचिंग में फिर हम आपको टीएटी डब्ल्यूएटी करा देते हैं. टीएटी डब्ल्यूएटी कराने से आपका पर्सनालिटी नहीं होगा. व्हेन यू आर एबल टू डेवलप दी स्किल्स, टीएटी डब्ल्यूएटी ठीक हो जाएगा. सो टेस्टिंग टूल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. सो हम ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम टेस्टिंग टूल में भी आपको मैनिपुलेशन कर रहे हैं. पर्सनालिटी मैनिपुलेशन के बारे में वीडियो मैं पहले दे दिया, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो आप देखना. तो आपका फेयर सेंस ऑफ जजमेंट, आपका जस्टिस, आपका लॉजिक, रीजनिंग, वो सब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है. पेरेंट्स से भी हुआ है, स्कूल से भी हुआ है, सोसाइटी से भी हुआ है, आज हम भी कर रहे हैं इन द नेम ऑफ कोचिंग. सो दैट इज़ देयर. इफ़ ए चाइल्ड लिव्स विथ सिक्योरिटी, इट लर्न्स टू हैव फेथ. अगर एक बच्चा माँ बाप के बीच में बहुत सिक्योर फील करता है कि मेरे माँ बाप हमेशा, ये फीलिंग बचपन से, इनफैक्ट माँ के दूध पिलाने के फेज से आता है. अगर वहीं से इनसिक्योर बच्चा हो जाए तो वो इनसिक्योरिटी उसको लास्ट तक अफेक्ट करता है. यू नो दैट मूवी हेलो डियर जिंदगी, कायरा वाली, मैंने उसको भी एक क्लिप मारा था. फिर सुरेश करके एक लड़के का भी स्टोरी बना. सम इंसिडेंट्स घर में हो जाता है, वो हमारे अंदर पकड़ के रख लेते हैं. वी हैव दिस फियर्स, सो इट एक्ट, है ना. नेक्स्ट इज इफ ए चाइल्ड लिव्स विथ अप्रूवल, इट लर्न्स टू लाइक इट सेल्फ. तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, आप अपने से कितना, अपने आप को कितना रेस्पेक्ट करते हो, या कहीं आप हीन भावना से ग्रस्त हो, ये सब डिपेंड करता है कि पेरेंट्स ने आपको कितना बचपन में अप्रूवल दिया था फॉर योर बिहेवियर, फॉर योर मिस्टेक्स, है ना. वैलिडेशन बोलते हैं. वैलिडेशन मतलब बच्चा गलती करता है बट द पेरेंट हैज़ टू गिव दम कॉन्फिडेंस कि डोंट वरी, गेट अप. बट अगर वो ना मिले और रेडिक्यूल करता रहा तो बच्चा दब जाता है और फिर उठना मुश्किल हो जाता है एडल्ट में, बिकॉज वो एक साइकोलॉजिकल पैटर्न बन जाता है. तो हम इसमें एक आगे एक वो लेंगे, पर्सनालिटी फॉर्मेशन ओवर ईयर्स. तो वहाँ पे माँ बाप बच्चे के फेलियर को कैसे डील करते हैं, या माँ बाप कैसे अनफेयर एक्सपेक्टेशन कर देते हैं, उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम आता है, तो हम इसको आगे देखेंगे. इफ़ ए चाइल्ड लिव्स विथ एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप, इट लर्न्स टू फाइंड लव इन द वर्ल्ड. तो अगर आपको घर में स्वीकार किया गया है तो आप बाहर भी वही ढूंढोगे, क्योंकि आपके अंदर वो लव, ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस घर में मिला. अब घर में ही आपको रिजेक्शन मिलेगा तो वो एक नेगेटिव साइकिल में चला जाता है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज पेरेंट्स, जो भी हम पेरेंटिंग कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को एक इन्वायरमेंट देना है जहाँ पे उनका ग्रोथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आ जाए हमारे फॉल्टी पेरेंटिंग के कारण. एंड मेनी पीपल टुडे ओवर पैम्परिंग कर देते हैं, है ना. पैम्पर्ड चिल्ड्रन कभी ऐसे छोड़ देते हैं अनइन्वॉल्व. बहुत सारे इशूज़ है, विल सी दैट. सो आज आप जब एसएसबी में जा रहे हो तो नेचुरली वी आर लुकिंग फॉर 4 डायमेंशंस ऑफ यू: फिजिकल डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन एंड द वैल्यू डायमेंशन. अगर माता पिता के ही वैल्यू सिस्टम उल्टे हैं, वही चोरी चकारी, दारू पीना, मार पिटाई, गाली गलौज करना, मम्मी को मारना, दारू पीना, गलत काम करना, तो नेचुरली उस माहौल में बच्चे का साइकोलॉजिकल ग्रोथ इफेक्ट हो जाता है. उसी जगह में माँ बाप के बीच में बहुत ज़बरदस्त हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग, लव, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस सब हो, तो ये सब चीज़ें बच्चे में इंड्यूस, इट इज़ जैसा आपका माहौल वैसा आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी. सो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप, योर पेरेंट्स रिलेशनशिप. आप अपने माता पिता का जो रिलेशनशिप की क्वालिटी को कैसा देखते हो? Would you like to go through a similar marriage what your parents are going through? या do you think तुम्हारे मम्मी पापा सांप और नेवले की शादी हो गई? या do they live like fish and water? या or do they live like fish and fisherman? है ना. माता पिता का जो रिश्ता है, अगर वो
मछली और पानी का रिश्ता हो तो बहुत कंपैटिबल, अगर मछली और मछुआरे का हो जाए, सांप और नेवले का हो जाए तो पूरा घर का माहौल ख़राब हो जाता है. सो आई वांट यू टू हैव ए स्टडी, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है CIQ में जो फैमिली का CIQ आता है उसमें दे आर नथिंग बट दे आर फाइंडिंग आउट दिस, एंड नॉट ओनली दे आर फाइंडिंग आउट दिस, दे ऑल्सो लाइक टू वांट टू सी कि उनका रिलेशनशिप का असर तुम पे क्या पड़ा. तो अगर उनका रिलेशनशिप बहुत हार्मोनियस है, नेचुरली इट विल हैव एन पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर पर्सनालिटी. अगर वही लड़ते पड़ते रहते तो इट कैन हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट. उसी तरह से कोई पेरेंट का लॉस हो जाए, माता पिता का किसी का देहांत हो गया या कुछ हो गया या डिवोर्स हो जाए, तो दे विल लाइक टू नो कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ. लाइक फॉर एग्जांपल माय डॉटर लॉस्ट हर मदर व्हेन शी वाज 12 years old. So definitely when she goes to the interview, they will like to know how this loss has affected and how did I conduct एज अ सिंगल फादर इन हैंडलिंग हर इश्यूज़, एंड क्या वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को मैं निकाल पाया हूँ या अंदर ही पड़ा हुआ है, कुछ प्रेशर कुकर बन गई है और कभी फट जाएगा. सो ऑल दोज इश्यूज आर देयर. दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपका जो फिजिकल मैच्योरिटी, आप शरीर से बड़े हो गए लेकिन मैच्योर हुए. आप शरीर से बड़े हो गए लेकिन बुद्धि का विकास हुआ. आप शरीर से बड़े हो गए लेकिन भावनाओं में स्थिरता आई है, भावनाओं की समझ है. आप बड़े हो गए लेकिन आपका वैल्यू सिस्टम अच्छा है. कभी कभी छोटे बच्चे बड़ों से ज़्यादा समझदार होते हैं. क्यों? क्योंकि उनके ये सिस्टम, तो घर का संस्कार बोलते हैं. वॉट इज़ द कल्चर इन द हाउस. तो जिस घर के संस्कार स्ट्रांग, उनके बच्चों के वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग. जिसके संस्कार गड़बड़, वो मार पिटाई वाला है, तो बच्चों को भी असर करता है. उसके अलावा पेरेंट्स का जो पेरेंटिंग स्टाइल है, ऑलरेडी इन वन ऑफ द वीडियोज आई हैव टोल्ड यू, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग. एक डिपेंडिंग अपॉन डिसिप्लिन, लॉ वर्सेस लव का बैलेंस है. लॉ मतलब उस बच्चे को हमने बाउंड्रीज भी दिखाना है, और लव मतलब फ्रीडम भी देना है. इसका एक बैलेंस चाहिए, लव एंड लॉ का बैलेंस. अगर पेरेंट्स से वहाँ गलती हो गया तो हमारे अंदर कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आ जाता है. तो सबसे आई जस्ट क्विकली टेल यू कि 4 क्या क्या है, उसके बारे में बात आगे करेंगे. एक है परमिसिव पेरेंटिंग, जहाँ बच्चा राजकुमार है, उसने जो बोला उसको दे दिया. उसको बोला मोबाइल चाहिए ले ले, मोटरसाइकिल चाहिए ले ले, उसको कभी मना ही नहीं किया. इसका मतलब क्या? लव ज़्यादा हो गया, लॉ नहीं है. तो इससे बाउंड्रीज का पता नहीं चलेगा, इसको सही गलत का नहीं पता चलेगा. और जब ये समाज में जाएगा तो वहाँ से भी एक्सपेक्ट करेगा कि सब मुझे ऐसे ही, इसको इट इज़ कॉल्ड परमिसिव पेरेंटिंग. परमिसिव, सब कुछ अलाउड है. पापा के सिर पे बैठ के खाना खाना, देखो. टीवी 8 घंटे देखना, देखो. मम्मी आज आप होमवर्क करोगे, देखो. सब कुछ अलाउड है, यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है. यहाँ इसका मतलब है एक घोड़ा है, छोटा बच्चा है, घोड़े की तरह है, वो बड़ा हो रहा है लेकिन उसके नकेल नहीं डाले यार, घोड़ा कहीं भाग सकता है. नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस पेरेंटिंग, बिकॉज इसमें जब बच्चा टीनेजर में आ जाता है तो बच्चा हीन भावना से सफ़र करना शुरू होता है, बिकॉज अदर चिल्ड्रन आर मोर बैलेंस एंड दिस गाय इज़ लाइक ए वाइल्ड हाउस, एंड देन ही गेट्स इनटू ऑल काइंड ऑफ रॉन्ग थिंग. विल टॉक अबाउट इट सब्सिक्वेंटली. तो लो इन कंट्रोल, इस तरह का कंट्रोल ही नहीं है, कुछ भी उससे एक्सपेक्टेशन नहीं, पढ़ना पढ़, नहीं पढ़ना मत पढ़. दैट्स वेरी खराब पेरेंटिंग. नेक्स्ट इज ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, डिक्टेटर्स है ना. यहाँ पे रिलेशनशिप इज सॉरी, यहाँ पे या ऑथोरिटेरियन, नॉट ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेरियन पेरेंट. दिस वन डिक्टेटर. बाप ने बोला ये होगा तो होगा, सवाल नहीं, सवाल आया तो पिटेगा. मतलब तू हिला तो पिटा, नहीं हिला तो पिटा, हर चीज़ उनका. इस तरह से जब पेरेंट्स हो जाते हैं तो उसमें आपका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी डेवलप नहीं होता, क्योंकि हमेशा आपको बाप ने कर करके अब ऐसा मेंटालिटी हो गया कि आप डिसीजन लेने लायक ना हो, और लोगे तो आपको घबराहट होता है. व्हेन यू बिकम एन एडल्ट, नेचुरली पापा तो नहीं लेंगे, अब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, दब गए, आप दब्बू बन जाओगे. आपका शायद उठना बैठने में भी, इंटरेक्शन में भी, सोशल इंटरेक्शन में भी असर पड़ जाएगा. वाई? बिकॉज आपको वो एनकरेजमेंट दिया नहीं, मतलब आपका सोशल स्किल्स ख़राब हो जाएगा. आप हमेशा डरे डरे रहोगे, और क्योंकि बाप ने एकदम दबा दिया. और कभी कभी उल्टा हो जाता है कि एक स्टेज के बाद बच्चा फट जाता है, तो वो देखेंगे. एक है रिजेक्टिंग ऑब्लिक नेग्लेक्टिंग पेरेंट, मतलब माँ बाप ने पैदा कर दिया, कुत्ते बिल्ली की तरह छोड़ दिया, बस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लड़ो मरो. तो ये कंप्लीटली एक रिजेक्टिंग वाला है, मतलब बच्चा पैदा हो गया, कुत्ते बिल्ली की तरह छोड़ दिया. सो इफ़ आवर पेरेंट्स हैव डन लाइक दैट टू अस, इट हैज़ अ वेरी डैमेजिंग रिलेशन, बिकॉज उसमें हमारा इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता, माँ बाप से कनेक्ट नहीं आता, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे ध्यान नहीं दिया, अब मुझे क्या देना. एंड आई डेवलप दिस एंटी सोशल बिहेवियर, मुझे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आना शुरू होता है ना. रिलेशनशिप इज रिजेक्टिंग, नेग्लेक्टिंग एंड अनइन्वॉल्व. खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला, स्कूल में टीचर ने बोला मेरे पास टाइम नहीं, बता देना, मतलब दे आर जस्ट नॉट बॉदर. बट तुम शरीर से बड़े हो रहे हो, बट इंटेलेक्चुअल
इमोशनल एंड वैल्यू मेच्योरिटी नहीं डेवलप होगा, बिकॉज पेरेंट्स ने उसके ऊपर काम नहीं किया. एंड द मोस्ट इफेक्टिव इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग या अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, जहाँ पे रिलेशनशिप इज रेसिप्रोकल. यहाँ पे लव एंड लॉ का बैलेंस करते हैं. एक्सपेक्टेशन भी है एंड फ्रीडम भी है. गलती भी कर सकते हो लेकिन करेक्शन भी करना पड़ेगा. हदें दिखाई जाती है और उसके अंदर फ्रीडम. बच्चे को एनकरेज किया जाता है अपने डिसीजन को खुद लिया. यहाँ पे माँ बाप बच्चों को क्या सोचना नहीं बताते, कैसे सोचना है बताते. आपने देखा होगा एसएसबी की ट्रेनिंग में, आई डोंट टेल यू डेड बॉडी का ड्रामा बनाओ, आई डोंट टेल यू कोर क्वालिटी छोप कर. मैं आपसे बोलता हूँ कि देखो बेटा, मैं नहीं सिखाऊंगा कैसे सोचना, आपने सोचना है, क्योंकि आपने एसएसबी में जाना है. दिस इज एन एम्पावरिंग पेरेंटिंग. तो अगर आपके माता पिता ये जो इस कैटेगरी के हैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इज रेसिप्रोकल, रेस्पॉन्सिव, हाई इन बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, देन यू आर अ बैलेंस पर्सन. ऐसा पेरेंटिंग अगर आपके माँ बाप ने ऐसा किया है, आपको किसी कोचिंग वाले की जरूरत नहीं है. अनफॉर्चुनेटली कोचिंग वाले भी आपको क्या कर रहे हैं, स्पून फीडिंग कर रहे हैं. दैट इज द डैमेज. वो भी आपको शिफ्ट नहीं कर रहे, वो आपको खुद ही कहानियां लिख लिख के दे रहे. आपको ये समझना पड़ेगा कि यू हैव टू टेक योर डिसीजंस. और वो आपके पेरेंटिंग का एक प्रॉब्लम है कि बचपन में आपको हर छोटा छोटा काम उन्होंने कर करके आज आपका वो डिसीजन मेकिंग फैकल्टी ख़राब हो गया. इसलिए आपका ऑब्जर्वेशन, ग्रास्प, आपका जजमेंट, इवैल्यूएशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कुछ डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि माँ बाप सब करते रहे. तो अगर आपके माँ बाप अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग वाले हैं या डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग वाले हैं, यू आर अ वंडरफुल चाइल्ड. बट अगर वो कुत्ते बिल्ली की तरह छोड़ दिया, देन यू आर नथिंग बट ए ह्यूमन बीइंग विद एनिमल इंस्टिंक्ट, बिकॉज सर्वाइवल द फिटेस्ट है. तो ये कैटेगरी है. तो यहाँ पे आपको देखा होगा, इनफैक्ट लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में जहाँ पे आर्थिक तंगी ज़्यादा होता है, माँ बाप पेट पालने में टाइम लग जाता है, वहाँ पे बच्चों के ऊपर ये सब छूट जाता है. वो इस कैटेगरी, तो वहाँ पे वो एंटी सोशल प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है, क्राइम का टेंडेंसी ज़्यादा था, बिकॉज पेरेंट कोई गाइड करने वाला नहीं है. ये वाला फोर्थ कैटेगरी तो बच्चा दब्बू हो जाता है. एंड फर्स्ट कैटेगरी होता है तो बच्चा एकदम साला शक्ल ही नहीं ले पाता, क्योंकि उसको सब कुछ इतनी आसानी से मिल गया कि चॉकलेट बन गया. फर्स्ट रेजिस्टेंस में तो ये बंदा तो फौज में कभी आना ही नहीं चाहिए, टूट जाएगा. ये बंदा एंटी सोशल है, ये बंदा डिसीजन नहीं ले, बच गया ये बंदा. तो आप जब किसी कोचिंग में जाते हो, दे हैव टू कवर अप दैट डैमेज विच द पेरेंट्स हैव कॉस्ट. दैट्स वॉट यू विल रियलाइज व्हेन थ्रू माई वीडियो. मैं तुम्हें सोचने पे मजबूर करता हूँ. मैं ये नहीं बताता डेड बॉडी का ड्रामा बनाओ, कोर क्वालिटी छुपा दो. मैं तो ये बोलता हूँ कि तुम रेकमेंड होना तुम्हारे कंधे पे, मेरे कंधे पे नहीं. सो पीपल, यू शुड अंडरस्टैंड कि जो डैमेज तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम, पेरेंटिंग और तुम्हारा जो भी इन्वायरमेंट के कारण हुआ, उसको मेकअप करना है, ना कि टीएटी ठीक करना है. आई डोंट नो मेरी बात समझ में आए तो मुझे फीडबैक लिखना, बिकॉज वो समझ में आएगा तो आई विल मेक सब्सिक्वेंट वीडियोज ऑन दिस. तो आप मेरे को सोचना कि आपके माता पिता का आपके ऊपर क्या पेरेंटिंग स्टाइल था और उनका आपस का रिलेशनशिप कैसा है. क्योंकि अगर उनका रिलेशनशिप अच्छा है तो आपको संबंधों की समझ आएगी. अगर उनका ही रिलेशनशिप खराब है, वही लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो आपके अंदर भी वो टेंडेंसीज आएगी. क्योंकि जो माता पिता ने किया वही तो हम भी सीखेंगे. तो आप मुझे कमेंट लिखे बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस है लाइफ का, और आपको क्या लगता है किस टाइप का पेरेंटिंग था आपका. 1, 2, 3 या 4th. अगर आप 4th हो या ब्लेस्ड. अगर 1, 2 एंड 3 है, अगर बहुत ज़्यादा डीप रूटेड नहीं है, मेनी थिंग्स कैन बी करेक्टेड, मेनी थिंग कैन नॉट बी करेक्टेड. इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग डैमेज डिपेंडिंग अपॉन किस हद तक उन्होंने उसको नुकसान किया है. सो आपको समझ में आना, कोचिंग में आते टाइम इट हैज़ टू बी ए बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन. कि आप मुझसे सवाल पूछो तो मैं ये नहीं बोलूँ सवाल मत पूछो, ऑफिसर बनना तो यही करो, गधा बना रहे हैं आपको. ये आपका पापा ने भी किया था बचपन में, अथॉरिटेटिव पेरेंट. आज हम भी कोचिंग वाले कर रहे हैं कि ज़्यादा दिमाग मत लगा. जैसे मैंने बोला डेड बॉडी का ड्रामा बनाओ तो बना, नहीं तो ऑफिसर नहीं बनेगा. डैमेजिंग, तुम्हारा भी डैमेज, और कहीं तुम सेलेक्ट हो गए तो देश का भी डैमेज. सेलेक्ट ना हुआ तो भी डैमेज, बिकॉज करेक्शन तो नहीं हो रहा. So I hope you have understood personality development, personality assessment and personality manipulation. समझना. Now, आपको समझना पड़ेगा कि अगर माँ बाप आपके बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, इस वीडियो को उनको भी दिखाना. बचपन से अगर आपके छोटा भाई वगैरह है और आप ऐसे इस लड़की की तरह सिर पकड़ के बैठे रहते हो, डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर इमोशनल हेल्थ मल्टीपल लेवल्स पे. और मैं तो एक काउंसलर भी हूँ, मैं तो मैरिज काउंसलिंग भी करता हूँ, टीनेज काउंसलिंग भी करता हूँ. तो मेरे पास ये माँ बाप आते हैं बंदर की तरह, अच्छे भले कमा रहे हैं लेकिन साला बंदर की तरह लड़ते हैं. उस माँ बाप, बच्चों को इतना असर हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बच्चों को मार पिटाई, वायलेंस.
सो इट अफेक्ट्स नॉट ओनली द पेरेंट्स, इट अफेक्ट्स द चिल्ड्रंस ऑल्सो एडवर्सली. तो आई डोंट नो आप लोगों को मेरी बात से समझ में आ रहा है तो आप मुझे मतलब चाइल्ड कैन फील इनसिक्योर, उसे हीन भावना आ जाती है, उसे लगता है कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है घर पे, साला कोई मुझे प्यार नहीं करता. यू कैन डेवलप ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी. तो कुछ मेजर जो इसके असर होते हैं इमोशनल बच्चे पे, पेरेंट्स की नहीं बात है, पेरेंट्स तो सारे लड़ते रहते हैं, ये आपके मेंटल आईक्यू को लो कर सकता है. जो मेंटल कैलिबर, योर ग्रास्प, ऑब्जर्वेशन, कंसंट्रेशन, योर रीजनिंग स्किल्स, एवरीथिंग कैन गेट अफेक्टेड बिकॉज तुम्हारा हमेशा सिर जो है गर्म ही रहता है क्योंकि माँ बाप का साला हल्ला चलता रहता है. सो इट कैन सीवियरली अफेक्ट योर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस. कॉग्निटिव मतलब मेंटल एबिलिटीज, आईक्यू से रिलेटेड फंक्शन. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप प्रॉब्लम. आप एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना सकते बिकॉज यू ओनली सीन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. तो आपको एक रिलेशनशिप बनाने की समझ नहीं डेवलप होगी, है ना. द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस. कॉन्फ्लिक्ट ही देखा है तो इट कैन सी वैल्यू. फॉर्चुनेटली EQ कैन बी करेक्टेड बहुत फास्ट. IQ को डेवलप करने में थोड़ा टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज वो एक फेज के बाद मतलब आफ्टर 18-20 के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट बेस्ट थिंग इज अबाउट EQ इज इट कैन बी हील्ड एंड इट कैन बी हील्ड वेरी वेरी पावरफुली. IQ का प्रॉब्लम है, EQ कैन बी डेवलप बिकॉज अवेयरनेस से बहुत फर्क पड़ जाता है. सो दैट इज़ द गुड पार्ट ऑफ इट. सेकेंड इज बिहेवियरल प्रॉब्लम. बच्चा बिहेवियरल प्रॉब्लम, बच्चा बात में उल्टा बोलना, प्लेट फेंकना, पढ़ाई नहीं करना, बदतमीजी करना, बिकॉज बच्चे का बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ हिज पर्सनैलिटी इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट. क्योंकि घर का इन्वायरमेंट खराब है तो उसका पर्सनालिटी इफेक्ट हो जाता है, तो उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम आता है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, मार पिटाई करता रहता है, दादागिरी करता है घर में. फिर एक और चीज़ सीखता है, जैसे 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 लड़की बड़ी हो गई है, इसका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल डेवलप नहीं होता. क्यों? क्योंकि जब भी माँ बाप के बीच में झगड़ा हुआ तो वो तो हमेशा मार पिटाई करते हैं. कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जब भी माँ बाप के बीच में कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आया तो वो बात करके नहीं सुलझाते. तो आप WAT में एनी प्रॉब्लम कैन बी डिस्कस बाय कम्युनिकेशन बोलने से नहीं होगा क्योंकि आपके अंदर वो आर्ट है ही नहीं. आपने तो देखा ही है कि माँ बाप के पीछे छोटा सा बात हो गया तो एक दूसरे गाली गलौज करते हैं. तो WAT लिखना अलग है लेकिन आपका साइकोलॉजिकल फ्रेम चेंज हो जाता है. पता नहीं मेरी बात समझ में आया तो आपको सीवियर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो जाएगा. ईटिंग डिसऑर्डर्स, कुछ लोग ओवर ईटिंग कर जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, कुछ लोग खाना नहीं खाते, तो इट अफेक्ट्स एवरीथिंग. इट अफेक्ट्स, है ना. ईटिंग डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस अब्यूज़, आपको क्योंकि घर में हमेशा झगड़ा चलता है, मार पिटाई चलता है, आपको लगता है घर से भाग जाओ तो गलत संगत में चले जाते हैं, वो आपको सारा ड्रग्स दारू में घुसेड़ देते हैं. कभी कभी गलत काम, बहुत ही गलत काम हो जाता है. एंड कभी कभी अगर ध्यान नहीं दिया तो क्रिमिनल टेंडेंसी में, एक्सट्रीम में चला जाता है. तो दोज थिंग्स हैपन, है ना. लो सेल्फ एस्टीम, स्वमान की कमी, यू आर नॉट एबल टू वैल्यू योर सेल्फ. अब आप बहुत बच्चे आते हैं अनफॉर्चुनेटली, आप SSB जाना चाहते हैं बट यू आर नॉट फीलिंग good about yourself. Now you have to change that. It is possible to change provided the guide the person who interacts with you knows how to heal those issues. पहली बात तो ये माँ बाप की गलती है क्योंकि बच्चे का जो परवरिश का जो responsibility, it is मात पिता गुरु देवम. नेक्स्ट इज डेफिनेटली अगर घर में साला युद्ध चलता रहेगा तो इट अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस, इट अफेक्ट्स योर इमोशंस, इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस एंड एक सेंस ऑफ वर्थ नहीं मिलता और हम एक दुखी आत्मा बन जाते हैं. सो जब SML में आते हैं लड़के लड़कियाँ, मेनी ऑफ देम दे आर लाइक ए मूविंग गार्बेज बिन. उनके अंदर इतना सड़ा हुआ आलू पड़ा हुआ, अंदर से बदबू आ रहा, बाहर से हंस रहे हैं, वो दैट इज़ वेरी पेनफुल. तो फिर उनको निकालने में बड़ा टाइम लग जाता है एंड उसको निकालने के बाद भी इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हो सकता तब भी ना SSB के लेवल पे हो बिकॉज SSB रिक्वायर्स एक्सट्रीम इमोशनल रेजिलियंस. इसके ऊपर मैं बात करूंगा, एक वर्ड मैं बोल रहा हूँ, इमोशनल रेजिलियंस. ये क्या होता है बताना. वी वॉन्ट पीपल विद एक्सट्रीम इमोशनल स्टेबिलिटी. फौज में इमोशंस की समझ होनी चाहिए बट इमोशनल नहीं होना पड़ेगा. आपको समझ में आ, देयर इज टू थिंग. इट इज़ ओके टू हैव इमोशन बट इट इज़ नॉट ओके टू बी इमोशनल. बट अनफॉर्चुनेटली हम कोचिंग में बोलते हैं कि भाई डेड बॉडी का ड्रामा बना दो, बी पॉजिटिव हो जाए. नो 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 नो, डेड बॉडी का ड्रामा बनाने से आप रेजिलियंस नहीं डेवलप होगा. डेथ को एक्सेप्ट करके हैंडल करने में आपको साला पैसा दे के बोलते हैं हैंडल करो, तो गलत करते हैं वो. पता नहीं मेरी बात से आपको कुछ समझ में आ रहा है या अभी भी घुसे हुए TAT WAT में, थोड़ा सोच के मुझे बताना, है ना. इसके अलावा ये आपको इसलिए भी ज़रूरत है कि आपको पता है जो इंटरव्यू में CIQ पूछते हैं, उनके पास PIQ तो होता ही है, उसके बाद जो CIQ, उसमें पहला CIQ देखो एजुकेशन है, फैमिली है, वर्क हिस्ट्री है, स्पेयर टाइम, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट है, जनरल नॉलेज है एंड सेल्फ इवैल्यूएशन है. सेल्फ इवैल्यूएशन इंटरव्यू में भी है और सेल्फ डिस्क्रिप्शन साइक में भी है. अब बताओ सेल्फ डिस्क्रिप्शन इंटरव्यू का और
सॉरी सेल्फ डिस्क्रिप्शन साइकोलॉजी टेस्ट का, ये दोनों एक ही बंदे का, तो ये अलग तो नहीं हो सकता। कुछ लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि सर जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट का, क्या वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास होता है? होता नहीं है, बट अगर ना भी हो इट इज़ द सेम, क्योंकि बंदा तो एक ही है। कॉन्ग्रुएंस तो चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस में इंट्रा टेक्निक एंड इंटर टेक्निक कॉन्ग्रुएंस की जब मैं बातें करता हूँ तो यू कैन नॉट राइट समथिंग देयर एंड समथिंग हियर, दैट मीन्स आप दो मुंह वाले हो। अभी इसमें देखो ये जो फैमिली अर्ली क्या बोलते हैं, फैमिली एंड अर्ली होम बैकग्राउंड क्यों देखना चाहता है? वो देखना चाहता है कि घर का माहौल कैसा था, घर में पिताजी का माताजी का एजुकेशन क्या था, उनका जॉब क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनका लाइबिलिटीज़ क्या है, आपका स्कूलिंग क्या, और इन सब ने मिला के आपको आज कैसा इंसान बनाया है। बिकॉज एवरी पेरेंट्स तो माता पिता है यार, मम्मी तो 9 महीने अपने बच्चे को गर्भ में रखती है, और माता पिता गुरुदेवम तो एक अलग CIQ है। तो अगर ये CIQ आपको फुल चाहिए, आप लोग इसे रैपिड फायर क्वेश्चन भी बोलते हो, तो आप AFOSUP के टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पे YLC का सिलेबस भी मिल जाएगा, और ये भी मैंने वहाँ पे शेयर किया हुआ, तो आपको ये जो क्या बोलते हैं CIQ फैमिली बैकग्राउंड वाला ये भी मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देखना। उसको देख कर जो आज का फ्री वर्कशॉप है उसको आना, और कोशिश करो माँ बाप को भी इसमें इन्वॉल्व करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी अगर ये समझ में आ जाए कि हमारा जो व्यवहार है घर में बच्चों के सामने जो हम करते हैं, अच्छा करते हैं गलत करते हैं, ये बच्चों के ऊपर एक इन्फ्लुएंस छोड़ रहा है। एंड अब आप माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा SSB में चला जाए, लेकिन उन्होंने डैमेज करके रखा हुआ है, तो और कुछ ना हो कम से कम सुधार तो आ जाएगा। हाँ, मैं एनीवे मैरिज काउंसलर, तो अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम हो तो उनको बोलना डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे, और ना हो तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप इस जो वीडियो को मैं जो बताने वाला हूँ फ्री वर्कशॉप का या उसको आप उनके साथ देखना। अगर उनको देखने में आपके साथ बैठने में प्रॉब्लम, क्योंकि उनको भी बहुत गिल्ट आएगा, क्योंकि जब मैं बोलूँगा तो तकलीफ होगा, क्योंकि उन्होंने शायद वो गलतियाँ किया होगा, तो आप अलग देख लेना, उन्हें अलग देख लेना, बट दिखाना ज़रूर, है ना। सो ये CIQ आपने नहीं लिया तो ले लेना। नाउ द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टेक ऑन 9 अगस्त 2020 संडे इज़ ऑन फेसबुक लाइव के ऊपर है, 5 बजे का टाइम पे है, और टॉपिक का नाम है हार्मनी इन रिलेशनशिप। ना हार्मनी इन रिलेशनशिप का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है SML के एक चैनल पे, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और एक है पेरेंटिंग, टीनेजर्स का पेरेंटिंग के ऊपर, उसे आप भी देख लेना। आप तो बच्चे हो, लेकिन एक्चुअली माँ बाप देखे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो आई वॉन्ट यू टू शो दैट। एंड हार्मनी इन रिलेशनशिप का ये पार्ट 2 है, एंड ये एक्चुअली इसमें पेरेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। और आप लोग आओगे तो CIQ पढ़ के आना कि आप CIQ में बोल क्या रहे हो, और वहाँ पे जब देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा आपके पेरेंट्स का पेरेंटिंग स्टाइल और उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ने आपको कैसे अफेक्ट किया है। और अगर आपने इस वीडियो को स्टॉप करके वो स्टोरी लिखा है, तो उसमें उसके ट्रेसेस को मैं आगे निकाल के दिखाऊंगा। मतलब जो जो भी आपके पेरेंटिंग का स्टाइल है उसने आपको कैसे प्रभावित किया है, उसको मैं, अगर वो आपने शुरुआत में वो वीडियो लिखा, क्या बोलते हैं, TAT के ऊपर कहानी लिखा, उसके ऊपर मैं कोरिलेट करके मैं अगले गैप एनालिसिस वर्कशॉप में या मे बी यूट्यूब वीडियो के ऊपर मैं उसको बना के दिखाऊंगा कितनी आसानी से आपका अंदर का वो चीज़ों को निकाल पाते हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये SSB इज़ अ पर्सनैलिटी बेस्ड सिलेक्शन। इसमें आपके माता पिता का बिहेवियर आपके साथ वो भी असर करता है। वो SSB नहीं जा रहे, लेकिन उनके बिहेवियर, उनका पेरेंटिंग स्टाइल आपको असर करता है। ये कोई कोचिंग वाला नहीं सुधार सकता, इसको हमको सुधारना पड़ेगा, जो कि मैं सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप टूल्स के थ्रू कराता हूँ, तो उसको ज़रूर वो आप देखना। इसके अलावा AFOSOP एंड SML का जो कॉम्पोजिट बैच है, नेक्स्ट बैच 10th को शुरू होने वाला है, मंडे को। 2 वीक ईच, 2 वीक्स ऑफ SML एंड 2 वीक्स ऑफ AFOSOP। इट विल बी रन कंकरेंटली, एक साथ चला जाएगा, एक मॉर्निंग में वो है। और जिसको बाई चांस अगर SML का सेपरेट लेना वो ले सकता है, जिसको AFOSOP सेपरेट लेना वो भी ले सकता है, बट आई विल एडवाइज यू टू गो फॉर बोथ, बिकॉज एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट टूल है और एक SSB का ओरिएंटेशन है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, और आप इसको मुझे व्हाट्सअप करना 8275577650 पे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर देना। एंड एक फीडबैक के लिए योगदीप नागर है, इन्होंने पहले AFOSOP का बैच लिया, और उसके बाद उनको लगा कि नहीं यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही कचरा निकल रहा है, जो भी निकल रहा है वॉट एवर, क्योंकि देखा कि सोचा प्रोसीजर तो पता ही है इनको, TAT WAT सबको पता है, प्रोसीजर पता से होने से नहीं चलेगा, पर्सनैलिटी पता है, आपका गैप पता है, उस गैप को भरना। तो इन्होंने पहले क्या किया, AFOSOP का 2 वीक किया, वो ख़त्म करके फिर SML में आए।
अब बोलते हैं कि सर पहले एसएमएल कर लेता तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होता, बट एनीवे दैट्स ओके, बट इट इज़ बेटर आइदर यू गो फॉर बोथ और यू गो फॉर एसएमएल फर्स्ट अगर आपके पास टाइम है। अगर एसीसी 1 2 3 वाले देख रहे हैं तो मैं बोलूँगा आपको कि इवन बिफोर द रिटन टेस्ट अगर आप एसएमएल में जाओगे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के मिल जाएगा, आपका पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है ना, आपकी पढ़ाई में आप परेशान हो जाते हो, मैथ्स में फंस जाते हो, फिजिक्स में पड़ जाते हो, इट विल नॉट ओनली हेल्प यू इन योर कॉन्सेंट्रेशन, हेल्प यू हाउ टू फोकस योर एनर्जीज। तो आई सजेस्ट यू टू वॉच इट। इनफैक्ट आपके भाई बहन हो, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन बिकॉज इट इज़ नॉट SSB ओरिएंटेड, एब्सोल्युटली लाइफ ओरिएंटेड। तो आप जरा योगदीप नागर से बात करना, इस फ्रॉम दिल्ली, उसका नंबर नीचे दिया हुआ है 9990336662। उसी तरह से एक और बंदे का नाम है, ये वडोदरा गुजरात से है, लक्ष्य कुमार, ही हैज़ जॉइन रिसेंटली एंड 9033264227। तो इन्हें भी मतलब ही इज़ कमिंग टू सच ए लेवल ऑफ क्लैरिटी। बोलता है सर इससे मैं अपने दोस्तों को भी मदद कर सकता हूँ क्योंकि सबका दिमाग आजकल उल्टा चल रहा है। सो आई रिक्वेस्ट यू टॉक टू देम एंड आई सजेस्ट यू टू अटेंड SML classes along with AFOSB rather than going only for AFOSB। आपकी मर्जी है, बट आई विल सजेस्ट यू, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि गो फॉर अ कॉम्पोजिट बैच ऑफ SML एंड AFOSB। एंड अगर आपके पेरेंट्स को भी जाना है तो दे कैन ऑल्सो अटेंड। SML इज़ अ कम्प्लीटली ओपन ट्रांसपेरेंट, इसमें कोई SSB कोई भी आ सकता है। सो लास्ट टाइम वी हैड अ 63-year-old मदर, क्योंकि मदर के ही कॉन्फ्लिक्ट चलते थे पिताजी के साथ और रिश्तों में, तो है ना। सो यू मोस्ट वेलकम टू डू दैट एंड व्हाट्सएप me at 8275557650। थैंक यू एंड आई होप टू सी यू ऑन 9th at 5 PM on the Facebook live, लिंक मैं नीचे दे दूंगा एंड लेट्स होप दैट we have a mutual learning session from that, and I want your feedback on this video plus the TAT response that I've shown you and feedback on parenting style और आपके ऊपर क्या है, क्या समझ में आया, ताकि उसके बेस पे मैं part 2 लूँगा। I'll request you to kindly put your video, comments. Thank you and may God bless you. Thank you very much.